Last time we discussed formula, right? According to formula, it is easy. On page number 97, we have some formula for e raised to x sin bx. At present, we see without formula. See, by formula, you have e raised to 2x sin x dx is equal to e raised to 2x upon a is 2, b is 1. It's 2 square plus 1 square. And in the Yes, curly sir. bracket, a sin bx, that means 2 sin 1x, minus b cos bx, that is 1 cos 1x. In this way, the Yes. simple sum, e raised to 2x by 5 into bracket 2 sin x minus cos x plus c. This we have discussed last time. Now we see without formula, and you observe the sum or part. I equal to e raised to 2x sin x dx. We use parts rule. Liait. Okay, sir. So the trigo function come first. So sin x I choose u and e raised to 2x as v. Therefore we have sin x into integration e raised to 2x dx minus integration of d by dx of sin x, that is what we call u, its derivative, into integration e raised to 2x dx. So Yes. this way we proceed and write sin x equal to e raised in sin x into what integration e raised to 2x e raised to 2x by 2 It's to 2x. minus integration derivative of sin x is cos x Got that, sir. into e raised to 2x by 2 dx. Correct? Huh? Yes, sir. Acha. Now we see the next line. What next line? E raised to 2x by 2 put first and sin x second term. After then minus, take out half and integration, cos x e raised to 2x. We again go by parts. The curly bracket we write cos x as it is, that is I call u, and integration v means integration e raised to 2x dx minus integration into d by dx of cos x into integration e raised to 2x dx and whole product we integrate. This is our rule. Now next step equal to what? E raised to 2x by 2 into sin x. Then minus half as it is outside. Now look at second term. Cos x as it is, what integration of e raised to 2x? E raised to E raised to 2x by 2. 2x by Then, 2. and then minus integration derivative of cos x, we know minus sin x. Derivative of cos x Yes, minus sir. sin x. And With the minus e sign. raised to 2x is integration e raised to 2x by 2. It's to 2x by Now 2. now in next step, see in next step. E raised to 2x by 2 sin x. Then minus half curly bracket look cos x e raised to 2x by 2. And outside minus half when I take inside minus 1 by 4 e raised to 2x by cos x. Is it? Yes. Acha. Now in this next term, minus half take outside, minus half already outside, that we take product with this double negative. See, minus, minus and minus. So 3 minus product minus sign. 1 by 2 and in the last term also 1 by 2 take out, so 1 by 4. So minus 1 by 4 integration what remain? E raised It to is to 2x into 2x sin x into dx. sin. Now what this integration e raised to 2x sin x dx is nothing but our I. You I. see, first, Yes, sir. first already we assume it is I. Our I is integration e raised to 2x sin x. And that is why we put that value is I. So that I equal to e raised to 2x by 2 sin x minus 1 by 4 e raised to 2x cos x and minus 1 by 4 I plus C. You clear why I say it is I 1 by 4I? Yes, Because Yes, sir. already we assume I means e raised to 2x sin x dx integral. Now this I collect on left side. So I plus 1 by 4I. Huh? है ना?
yes or Yes, no Yes, sir. बोलता sir. जाओ. हाँ. And now we see in remaining two term e raised to 2x by 4 common out. Oh, E raised to okay, sir. 4x, I mean 2x by 4. So what the first term now becomes, there is only e raised to 2x by 2. So to balance it, Yes, we sir. write inside 2 sin x To sin x and then minus cos x cos x. plus Yes, c. sir. Okay, that's very Yes, clear. sir. Okay, Acha, sir. what sum of I and 1 by 4i? I 5 by common 4 1 I. plus 1 by 4, 5 by 4i. And this side e Yes, raised sir. to 2x by 4 and as it is. Now you want I. So I equal to 4 by 5. 5. Multiply. River other side you take. That means 4 by 5 to Yes, multiply. So what happened? E raised to 2x by 5. In the bracket 2 sin x minus cos x. And what's 4 by 5 into c? That is I call new constant c dash. yes, sir. जो यही आंसर ऊपर भी था, देख लो ऊपर जाके, ई रेस टू 2x/5 इंटू ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x, यही आंसर हम लाए थे पहले और के पहले. हाँ देखो कितना शॉर्टकट में आ गया था, वो फॉर्मूला के बेस पे चलता है. Yes, sir. वो मैंने बोला ना कि पिछले साल तक वो फॉर्मूला थी. हाँ, फिर जो एनसीईआरटीआर जो वाला आया ना कोर्स, इसमें ये फॉर्मूला नहीं दी गई है, तो आपको इसी तरह से गिनना पड़ेगा जैसे मैंने अपने अभी बताया. लेकिन क्या है, ये मैं फॉर्मूला आपको इसलिए दे रहा हूं कि जब जे डबल ई का सम आएगा और इसमें जो कोई एग्जाम में ये एमसीक्यू में पूछेगा तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला से आप गिन सकते हैं. समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अभी जो हमने गिना वो क्या किया, पहला हमने ई रेस टू 2x साइन एक्स डी एक्स को आई सपोज कर लिया. फिर हमने ट्राई किया उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से. पार्ट से करने में क्या हुआ कि साइन एक्स का एक दफे कॉस एक्स हुआ, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव किया तो साइन एक्स हो गया. तो साइन एक्स ई रेस टू 2x आता है तो वही पॉइंट आ जाता है आई, तो उसको हमने आई ही फिर से लिखा. तो बाद में आई का कलेक्शन वन साइड किया तो आई की वैल्यू आ गई. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने जा रहा हूं? Yes, sir. हाँ, तो जब भी इसी टाइप का सम आए, देखो ये ई रेस टू 2x साइन एक्स है, कोई ई रेस टू 2x कॉस एक्स भी दे सकता है, कोई ई रेस टू 3x साइन 3x ऐसा भी दे सकता है. तो करना तो इसी टाइप का ही मेथड से. लेकिन वो क्या है कि पहले फर्स्ट टाइम जब बार पार्ट्स रूल लगाओगे तो कॉस एक्स आ जाएगा. दूसरी बार दूसरी बार पार्ट्स रूल लगाओ तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स हो जाएगा. तो वहां आपका टर्न आ जाएगा, वहां रुक के आई लिख देने का और आई को कलेक्ट कर दो वन साइड, तो अपने आप आई की वैल्यू आ जाएगी. अगर आप करते रहोगे तो उसका तो छेड़ा नहीं मिलने वाला. मान लो कि आपने पहली दफे किया बाई पार्ट तो साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ, फिर कॉस एक्स का बाई पार्ट्स किया तो साइन एक्स में आ गया. अभी जो आगे चालू रखते तो साइन एक्स का फिर कॉस एक्स का फिर साइन एक्स, ऐसा तो चलता ही रहता. आपको समझ में आया कि नहीं ये मैं Yes, क्या sir. आ रहा बोलने है. जा रहा हूँ? हाँ, तो जहां अपना वो ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है उसी को आई हमने सपोज किया है, तो वहीं पे ही आई लिख दो, वहां रुक जाने का है और उसको कलेक्ट कर देने का है. बराबर है? हो Yes, गया, sir. समझ में आ गया? बराबर. हाँ सर, आ गया अच्छा, सर. अभी अभी पेज नंबर 99 पे आओ, जरा आगे जाने दो. वहां 22nd सम दिया है. हाँ, उसको भी सीधा कर दो. ये ऊंधा आया, सीधा आया, लेकिन हाँ बस ये बराबर है. अच्छा देखो, 22nd में इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x², पहले जैसा आया, पहला यही ऐसी टाइप का सम आया था. मैंने Yes, sir. आपको एक्स्ट्रा सम दिया था, उसमें भी मैंने इसी टाइप का सम दिया है. मतलब आपको ये तो पता चल जाएगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है. Yes, sir. बराबर है ना? मैंने हम्म. आपको Yes, यहाँ भी दिया था, इसी टाइप का एक सम था मेरे ख्याल से. नहीं, वो पिछले टाइम नहीं दिया है, मैंने देख लिया लिस्ट में. लेकिन उसी टाइप का सम होता है तो आपको क्या सपोज करना पड़ता है, साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² है ना. तो इसमें जो x के ये 2x/1 + x² ट्रिगो में कौन सी फॉर्मूला आती है इसी टाइप की, जरा सोच के बताओ.
सर साइन को टेन में कन्वर्ट करने के लिए sin 2x हाँ એટલે sin 2 with x थीटा of जैसी 10. फॉर्मूला आती है ना, sin 2 थीटा की टेंजेंट फॉर्म है Yes, sir. 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसीलिए हम Yes. x सपोज करेंगे tan थीटा। ये Okay. फॉर्मूला सोचना पड़ेगा आपको, ध्यान में आ जाएगी। ये तो जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तभी भी ये थिंकिंग करना पड़ता है ना। हाँ, तो देखो यहाँ x tan थीटा ले लिया तो dx Yes, क्या sir. होगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अभी आपकी टर्म बन गई Hello, sir. साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड dx की जगह sec स्क्वायर थीटा। अभी साइन इनवर्स ब्रैकेट में जो टर्म है वो साइन 2 थीटा ही है, ट्रिगोनोमेट्री वाली, है ना। पता चलना चाहिए ये साइन 2 Yes, sir. थीटा का फॉर्म है। अभी क्या करे, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का Sir. 2 थीटा ही होगा। तो देखो अभी प्रॉब्लम सिंपल हो गया, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुआ। बोलो बराबर है, सबको समझ में Yes, आया sir. क्या हाँ क्या सर किया बराबर। मैंने। हाँ, Yes. पहले मैंने x बराबर टेन थीटा इसलिए लिया कि ब्रैकेट में जो फॉर्म है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें जब हम x टेन थीटा रख देंगे तो वो साइन 2 थीटा हो जाने वाला है। और ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का मतलब 2 थीटा है, तो वो सिंपल हो जाएगा, इनवर्स में से हम बाहर निकल जाएंगे। और जो dx होगा डेरिवेटिव, वो तो आप x टेन थीटा लेते हैं तो dx x स्क्वायर थीटा डी थीटा दिखाई देता है, तो वो वहां लिख देने का है बस। तो 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हुआ। अभी हम इंटीग्रेशन करने जाए तो 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो। अभी अपने पास 2 ही टर्म बचा, थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा। किसको यू रखे किसको वी रखे वो Yes, आपको sir. डिसाइड करना है। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा सेक Yes, sir. स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा है। तो हाँ Tan सर। theta. हाँ, थीटा एज इट इज करे इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ब्रैकेट में थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ही टेन थीटा है, माइनस वहां डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वन ही होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का तो Tan इंटीग्रेशन theta. थीटा है। तो हो गया डबल मीन्स ट्वाइस इंटू ब्रैकेट थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन टेन थीटा क्या है, लॉग मॉड सेक थीटा। याद रखना पड़ेगी फॉर्मूला, मैं बार बार बोल रहा हूँ Mod sec फॉर्मूला का theta. तो लिस्ट बना Yes. ही रखो, याद करते रहो हर वक्त। तो हो गया, अभी यहाँ अटक नहीं जाने का, यहाँ क्या करने का, रुकने का नहीं है। थीटा की वैल्यू अपना ओरिजिनल फंक्शन तो एक्स में है, वो भूलना मत। हमने x बराबर टेन थीटा लिया है तो ये आंसर आया है। अभी थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, x टेन थीटा है तो थीटा का मतलब टेन इनवर्स x, टेन थीटा है तो x लिखो, तो 2 Yes, sir. इंटू टेन इनवर्स x इंटू एक्स हुआ। फिर वो 2 सेकंड टर्म के साथ प्रोडक्ट में आएगा तो -2 लॉग सेक थीटा है, हम लोगों ने लिया है टेन थीटा x, तो सेक एंड टेन का तो रिलेशन बहुत बढ़िया है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही बोला जाता है ना सेक थीटा को। तो सेक थीटा की जगह हम अंडर रूट 1 Yes, sir. प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखे और टेन थीटा की जगह एक्स लिख दो, तो हो गया लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अभी वो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स वाला एक्स आगे लिख दो तो 2x टेन इनवर्स एक्स बराबर, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, क्योंकि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टू हाफ, हाफ को नीचे ले लो तो 2.5 कट हो जाएगा, या तो 2 को ऊपर लगा दो, कोई भी करो तो लॉग ऑफ Power 1 1. प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। Yes, sir. हाँ, अभी इसके नीचे देखो मैंने दो चार सम दिया है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये रहा, ये आज गिन लेने का, Okay. बराबर है, आज का होमवर्क Okay, है, sir. ऐसा समझ लो। क्या क्या दिया है देखो, टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता चल गया कि यहाँ भी यही सपोज करना है। क्या सपोज करोगे, Tan theta. 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, किसकी फॉर्मूला है, टेन टू थीटा की, तो टेन इनवर्स टेन टू थीटा ही Yes. आएगा। वहां dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा, सिमिलर टाइप स्टेप। फिर Yes, sir. इसके बाद वाला देखो, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी क्या ये भी करना सर पड़ेगा, cos 2 theta है. हाँ टेन Tan थीटा theta. लिखो
ये तो वो cos 2 थीटा हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा चौथा मैंने जो दिया है, दो सम, Yes, तीसरा sir. और चौथा, तो इसमें वो Integration by फॉर्मूला parts. ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स, फॉर्मूला से नहीं करने का, मैंने जो पहला सम आज का बताया ने, उसी टाइप Yes, sir. का सपोज करके, आई सपोज करके आगे धीरे धीरे बढ़ते जाना। जब फिर से ई Okay, रेस sir. टू 3x कॉस 2x आ जाएगा, दो दफे I आपको see. पार्ट्स रूल अप्लाई करना है, तीसरे टाइम पे जाने का ही नहीं, क्योंकि कॉस Okay. का साइन एक्स हो जाएगा, साइन का फिर कॉस हो जाएगा, फिर क्यों आगे बढ़े, ई रेस टू चलता रहेगा साइन एक्स। हाँ वहीं आई लिख देने का, ई रेस टू 3x कॉस 4x जब आएगा फिर तो आई लिख के वन साइड कलेक्ट करके पहले वो सम समझ लेना बराबर, समझे, तभी आपको आ जाएगा। हाँ अगर सर। तकलीफ हो तो मैं तो बैठा ही हूँ। Yes. अच्छा, इसके बाद वाला में भी यही करने का है, ई रेस टू एक्स साइन 2x dx है। तो आप पहली So दफे इसमें फॉर्मूला लगा पहली सकते हैं. पहली दफे आप पार्ट्स का रूल लगाओगे तो साइन का कॉस होगा, है ना। अच्छा, Sir, ऐसा ही इसमें समझ लो। डायरेक्ट हाँ कर सकते हैं है, फॉर्मूला से e raised to x नहीं e नहीं, f मैं of ना x. बोल रहा हूँ ने भाई, फॉर्मूला से नहीं करने का, वो जे डबल ई में करने का। यहाँ अपने एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला नहीं दी है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ मैं, समझे। Okay, sir. तो इसीलिए अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो इसी टाइप से, इसी हिसाब से गिनने का। आप लोग देख लो अपनी टेक्स्ट बुक में, एक दो सम इस लोगों ने गिन के भी दिया है, तब बिल्कुल मेथड ऐसे ही मैंने जो बताया ना अभी, ऐसे ही गिनने का है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज करने का है, बहुत बराबर। लॉन्ग मेथड जाती है. हाँ तो लॉन्ग करना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो शॉर्ट मेथड से जाओगे शॉर्ट मार्क मिल जाएगा। ये 3 मार्क का मान लो कि सम रख दिया और आपने फॉर्मूला से यूज कर दिया, तो कोई 3 मार्क नहीं देने वाला, 1 मार्क देके चला जाएगा आगे, तो आपको 2 मार्क की लॉस हो गई, इसमें क्या फायदा है। Yes, sir. हाँ, आती है मेथड तो करने में वो, ये टाइम ऐसा नहीं करने का, नहीं गिनने का, बराबर। चलो Okay. फिर वो सामने देखो, ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस 1/x के dx, वो वाला सर सम इसमें आया फॉर्मूला लगा सकते हैं ना. है। हाँ इसमें तो है ना, फॉर्मूला जो है वो तो है ही। मैं, Okay, sir. हाँ वो तो मैंने बोला ना भाई, जब मैं ना बोलता हूँ तभी सुनो कि यहाँ हम्म. नहीं करने का, फिर बार बार ये नहीं बोलने का यहाँ का लगाना है का नहीं, मैंने लगाई तो Okay. आपको क्यों ना बोलूं मैं। Okay, sir. हाँ वो पिछले टाइम तो डिस्कस किया, कितने सम इसके ऊपर हो गया, अभी उसका प्रॉब्लम और विवाद नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या क्या कह रहा हूँ। पंकज, Yes, sir. Clear. हाँ तो वो समझ में आया कि कंफ्यूजन है अभी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं. हाँ कंफ्यूजन नहीं रखो भाई। Okay, sir. हाँ यहाँ ई रेस टू एक्स वाली फॉर्मूला दी गई है टेक्स्ट बुक में, तभी मैं बोल रहा हूँ कि उसको यूज कर सकते हैं। Okay, जब sir. नहीं दिया है तो कहाँ से, आप लोग टेक्स्ट बुक देखते हैं कि नहीं, सिर्फ मेरी नोट देख के मत चलो करो, उसमें भी देखो गई कि क्या क्या दिया है। हाँ वो Okay, sir. तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट बैठेगा मेरे पर भी कि साहब बराबर बता रहे हैं कि नहीं। ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स वाली फॉर्मूला ही यूज करने का है। आया Okay, sir. बात समझ में, हाँ। चलो आया. फिर उसके बाद वाला तो इसमें आज भी दे दिया था पिछले टाइम, कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर वाला, फिर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी शायद वो भी होगा। Yes, sir. हाँ वो भी दे दिया था, तो वो नहीं गिनने का। फिर एक्स स्क्वायर कॉस 4x, ये नहीं दिया है तो करने का है। Hmm. फिर एक्स साइन इनवर्स एक्स, वो भी दिया है तो वो नहीं करने का, ऐसा। Okay, कठिन sir. सम आप नहीं करोगे तो चलेगा, बाकी ठीक. सब करने का है। ओके, Okay, sir. Yes, sir. अच्छा अब आगे बढ़े जरा। अभी आ रहा है मेरे Yes, ख्याल sir. से एमसीक्यू वाला, 2 क्वेश्चन है, 23 एंड 24, ये 100 नंबर पेजेस आएगा। हाँ बस आ गया, नहीं 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 आया, ये है, हाँ बस 100 आया, अभी उसको सीधा कर दो। देखो 23, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब डी एक्स, बस इतना ही रखो। अब आप सोचो कि कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें। उसका 4 ऑप्शन दिया है, सम कोड दिखा करो, सम कोड दिखोगे तो कुछ न कुछ आइडिया मिल जाएगी आपको। So, इसमें तो डायरेक्ट फंड है कि हम्म?
जो भी e की पावर है उसे t मान लेते हैं, मतलब अगर हाँ, x की जगह एक्स हो। क्यूब की जगह टी सपोज करो, ताकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है 3x² है ना, 3x² यस सर। dx। तो जो डेरिवेटिव है 3x² dx बराबर dt, वहां x² dx को आप क्या लिख सकोगे, 1/3 dt लिखोगे क्या नहीं? यस सर, लेकिन हाँ, तो सम हो जाएगा। देखो ऊपर जाने दे, देखो ये आ गया 1/3, 1/3 मैंने लिख दिया, x² dx की जगह 1/3 dt। साइड पे देख लो वो डेरिवेटिव वाला, सब समझ में आ जाएगा। एक्स की जगह टी लिखो, 1/3 तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी है, तो 1/3 ई रेस टू टी प्लस सी हुआ। इसमें टी की वैल्यू फिर से लिख दो, तो हो गया ना ऑप्शन ए वाला आंसर। यस सर। हाँ सर, हो गया। वो समझना क्या है इसमें कि ऊपर जो ई रेस टू एक्स क्यूब लिखते हैं ना, तो एक्स क्यूब की जगह ही टी सपोज करना चाहिए, ताकि वो x² वहां से खिसक जाए। ये आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर हम एक्स क्यूब की जगह x4 देते तो वहां में x³ दे देता। आप समझ सकते हैं, क्योंकि x4 का डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ होगा, तो x³ dx की जगह 1/4 dt आ जाता। आया? यस सर, क्लियर। हाँ, आ गया हाँ सर। हाँ, तो समझ लो बराबर। चलो 24 नंबर, ई रेस टू सर एक्स, वन। बस उसको ही देखो क्या आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे। ई रेस टू एक्स सेक एक्स इंटू 1 + 10x, ये तो हमने बता ही दिया है ऑलरेडी, आपको सिर्फ आइडिया देना है। सर 1 + 10x का करेंगे फिर? हैं? क्या करेगा तो वो आपको सोचना है, मैं क्या बोलूं। मैंने तो सब कुछ बताया है। जब भी ई रेस टू एक्स दिखाई दे और दो टर्म अंदर दिखाई दे तो क्या करना है? सर एक मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर। सर हाँ, एफ करो एक्स ना, और एफ एस एक्स। सेक एक्स प्लस सेक सेक एक्स एक्स प्लस 10x। सेकेंड टू 10x। हाँ, तो आगे क्या करोगे बाद में? ये तो सर हो सेक गया। एक्स 10x सर सेक एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन होता है, सेकेंड टू 10x। हाँ, sec x का डेरिवेटिव sec x 10x है, तो जो दूसरा टर्म sec x 10x है उसको यस। हम डेरिवेटिव ऑफ sec x लिखेंगे, एफ डैश, हाँ। तो आंसर क्या आ जाएगा? ई रेस टू एक्स इसमें आ सेक जाएगा एक्स। अपना डिवाइड एक्स ऑफ ई सेक एक्स। अरे, अरे सर ई आंसर रेस टू बोलो एक्स ने। सेक एक्स। ई रेस टू एक्स सेक एक्स। हाँ, ई रेस टू हाँ एक्स sec वही x सर। आएगा। ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट पहले sec x प्लस sec x 10x लिख दो, फिर आपको पता चल जाया है कि sec x का डेरिवेटिव sec x 10x है, तो आप sec x की जगह एफ एक्स सपोज करो तो बगल वाला एफ डैश एक्स हो जाएगा। आंसर के फॉर्मूला के मुताबिक ई रेस टू एक्स एफ एक्स आएगा। ई रेस टू एक्स एफ एक्स का मतलब ई रेस टू एक्स sec x dx, इसमें क्या है? हो गया क्या नहीं बोलो? यस सर। तो यहाँ 7.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, फिर 7.7 एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और वो भी आज फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 11 सम है। और ये जो 11 सम है, इसमें 2-3 फॉर्मूला यूज होने वाली है। कौन सी आपको अगर याद हो तो मैं बताऊं। मैंने एक फॉर्मूला, नहीं है तो पेज पे लिखो, 3 फॉर्मूला में से कोई फॉर्मूला यूज होगी, आप पेपर में नोट कर लो। पहले फॉर्मूला लिख दो बस। नहीं, ये 100 एंड कौन सा पेज आया, 1 लाना चाहिए, 1 पीछे आगे होगा, कुछ ना कुछ सेट कर लो ना, मिल जाएगा। हाँ बस ये आया, ये रहा, ये एक्सरसाइज 7.1 में फॉर्मूला। पहले बस यहाँ रुको, फॉर्मूला आप लिख दो, 3 फॉर्मूला है, क्योंकि आप लोगों याद नहीं रखते। जैसे जैसे फॉर्मूला है उसको लिस्ट बना के लिखते जाओ, ऐड करते जाओ और याद रखते जाओ। ऐसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं, जो जितना समझा है वो भी चला जाएगा बाद में। नुकसान आपको ही होने वाला है अगर जो आप सुनोगे नहीं तो। मेरी बात सदा सुनना लायक होती है भाई। मैं बोलता हूँ थोड़ा कम, लेकिन जो बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ। तो चलो फॉर्मूला लिखें, लिखवाऊं? ओके सर। अच्छा लिखो, नंबर 1, यस सर। इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस a² dx।
इंटीग्रेशन में लिखो अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर, एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर, ये पहला टर्म आएगा, प्लस दूसरी टर्म लिखो प्लस ए स्क्वेर बाई टू लॉग मॉड, लॉग फिर मॉड में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर, ए स्क्वेर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर प्लस सी। सबने लिखा? आयुषी? यस सर, हो गया। आयुषी ने लिखा? आयुषी जवाब नहीं आई है? हाँ सर लखी लीधु। अच्छा, राय? राय गायब छे। चलो सेकंड फॉर्मूला, दूसरी फॉर्मूला लिखो, बिल्कुल वैसे ही है, अंडर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर डी एक्स लिखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर डी एक्स, वो प्लस था यहां माइनस है, सिर्फ इतना ही है, फॉर्मूला में कुछ फर्क नहीं है। लिखो एक्स, आंसर लिखो एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर बाई टू, माइनस ए स्क्वेर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर डी एक्स का क्या है? एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर प्लस सी। हो गया? यस सर। तीसरी फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर डी एक्स बराबर क्या है? देखो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर, ये पहली टर्म, प्लस प्लस दूसरी टर्म ए स्क्वेर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये तीन फॉर्मूला के ऊपर ही एक्सरसाइज 7.7 है जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, ये तीन फॉर्मूला पे ही एग्जाम दिया है, बस आपको सेट करना है। तो मान लो कि पहला सम देखे अगर तो वो कौन सी फॉर्मूला पे मैच होता है, चेक करके बताओ। अंडर रूट 4 माइनस एक्स पे डी एक्स, यस। थर्ड फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी बोली लास्ट वाली, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टाइप फॉर्म है, तो मैंने 4 को लिख दिया 2 स्क्वेयर, हो गया ना, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बोलो यस सर। हाँ, अभी फॉर्मूला को अप्लाई करो, उसी मुताबिक एक ही जगह 2 ही लिखना है, दूसरा कुछ करने का ही नहीं। तो एक्स बाई टू की जगह एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, प्लस ए स्क्वेयर बाई टू, ए स्क्वेयर का मतलब 4, तो 4 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई टू, और उसके बाद आंसर एक्स बाई टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, 4 बाई टू का मतलब 2, 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू। बोलो फिनिश हो गया पहला वाला। यस सर। अभी दूसरा सम देखें, आगे जाने दे, सिर्फ थोड़ा सा खिसकाओ बस। देखो ये इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर डी एक्स है, तो उसको क्या किया जाए? उसको भी स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, हाँ 1 स्क्वेयर माइनस 2x का होल स्क्वेयर लिखेंगे। यस सर। आयुषी लेफ्ट कर गई। अंडर रूट 1 स्क्वेयर माइनस 2x का होल स्क्वेयर होगा।
अभी अब फॉर्मूला हम लगाने शुरू करें तो अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, लेकिन अभी एक्स नहीं है, एक्स की जगह क्या है 2x। जरा ऊपर ले, थोड़ा एक स्टेप ऊपर ले, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 सर ले माइनस, लिया है ऊपर, तो यहाँ दिखता स्क्रीन पे नहीं नहीं है। आ रहा है। आ रहा है, आ जाएगा। तो वो 1 हाँ, स्क्वेयर माइनस आ गया। 2x स्क्वेयर है ना, तो मैं क्या बोलूं, 1 स्क्वेयर तो ए स्क्वेयर की जगह बराबर है, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर जो बोलते हैं हम फॉर्मूला में, वो x की जगह 2x है, ये मगज में रखो पहले। यहाँ x नहीं आएगा, x की जगह 2x आएगा। तो ऐसा है। हाँ, यस और सर। इसीलिए आपका इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के हिसाब से इंटीग्रेशन तो लिखोगे, लेकिन बाहर क्या लिखना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट जो यहाँ यस 2 सर। है, वो 1/2 पहले लिख दो, सेफ साइड कर लो पहले। अगर आप 1/2 नहीं लिखोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा, समझ लो बराबर ध्यान से। क्या करना है, 2x है तो 1/2 बार आएगा, 3x होता तो 1/3 लिख लेता। समझ में आया मैं क्या कहना रहा जा रहा हूँ वो? यस अच्छा, सर। अच्छा तो 1/2 बार लिखा, फिर अंदर क्या हुआ, बाई फॉर्मूला से चलेंगे आगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से x/2 करते हैं तो x नहीं लिख देने का, यहाँ x की जगह 2x है तो 2x/2 लिखेंगे, एंड बाद में इनटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की मुताबिक 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब 1/2, फिर साइन इनवर्स x बाई ए, लेकिन x नहीं है यहाँ, ध्यान रखो, बार बार बोल रहा हूं, 2x/1 लिखेंगे, यानी के 2x। अब ओपन कर लो ब्रैकेट, तो 1 2 तो कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ x/2 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर पहली टर्म आएगी, दूसरी टर्म में 1/2 का प्रोडक्ट 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c हो गया ना बराबर? बोलिए। यस सर। यस सर। अब हम तीसरा सम पे जा रहे हैं। देखो तीसरे सम में क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख दिया, अंडर रूट करके एक्स स्क्वेयर प्लस 4x+6 है, तो हमको क्या करना चाहिए, डेफिनेटली जो तो इसको स्प्लिट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, जैसे हम 1/√, में आती थी ना ऐसी टर्म पहले कर गए, 1/√, यस सर। वाला फॉर्मूला था, तभी जो करते थे वही काम करना है यहाँ, दूसरा क्या। यहाँ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x+6 है, तो किसका स्क्वायर लिखोगे ताकि एक्स स्क्वेयर प्लस 4x अंदर आ जाए, सर एक्स एक्स प्लस, माइनस 2 का होल अरे स्क्वायर। अल्लाह भाई एक्स प्लस, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, माइनस क्यों गलती से कर, निकल हाँ, x+2 का होल स्क्वायर करेंगे, राइट। गया। तो इसीलिए एक्स और स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा और +4 आएगा, वो 4 यस सर, एंड यहाँ 6 है, तो बाद में +2 ही ऐड करेंगे। +2। 10 हो जाए। बस जरा एक स्टेप ऊपर लो, पता चले। हाँ, अभी अभी जाने दे थोड़ा। हाँ, जो आया ना एक्स, बस बस x+2 होल स्क्वायर +2 dx हो गया बराबर, समझ लो। यस सर। हाँ, तो ये कौन सी वाली फॉर्मूला पे सेट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस x ए square plus स्क्वायर। a। अंडर रूट ए स्क्वायर। एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसके ऊपर फॉर्मूला सेट होती है, समझ में आ गया? Yes sir। यस यस सर। सर। हाँ, अभी हम फॉर्मूला नो डाउट अप्लाई करेंगे, पहली वाली फॉर्मूला जो मैंने आज लिखवाई, वो पहली वाली फॉर्मूला पे ही जा रहा है, आपको पता चल गया है, बराबर है। तो अभी जब हम उसका यस सर। यूज, अभी जब हम उसका यूज करेंगे ने, तो इसमें x/2 की जगह, x की जगह क्या है वो देख लो, x+2 है। एक्स प्लस हाँ सर, x+2। हाँ, तो x/2 मत लिखना, यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से x/2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, वहां x था इसीलिए x/2 आता है, यहाँ x+2 होल स्क्वायर है, तो x की जगह पे जो है x+2, तो x+2/2 ही लिखना, फिर अंडर रूट जो फॉर्म है x² प्लस ए स्क्वायर वही लिखना है, मतलब कि वो ओरिजिनल फंक्शन अंडर रूट x² प्लस 4x+6 ही लिख दो। बोलो आया बराबर? हाँ यस सर। सर। यस सर। प्लस a² बाई 2, ऐसी फॉर्मूला है, a² बाई 2, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ 2 है, रूट तो 2/2, फिर लॉग, लॉग ऑफ मॉड क्या होता है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा है फॉर्मूला के मुताबिक।
लेकिन Yes, sir. यहाँ x की जगह x+2 है, वो बार बार मैं बोल रहा हूँ, समझ लो। लॉग मॉड में x+2 लिखना पड़ेगा, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब तो अपना ओरिजिनल फंक्शन है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। बोलो हो गया क्या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, अगर एक मिनट, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे भाई यही पेज रखो ना, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। हाँ, Hello, sir. चौथा सम पे आ गया, तीसरा सम ही रखो ना, उतावड़ मत करो यार। मैं थोड़ा कहने जा रहा था इसमें, जरा पीछे रिवाइंड कर, थर्ड नंबर पे ही ला दे पहले। थर्ड एग्जाम्पल है ना, वो ही ला मेरे को पहला बताओ। हाँ, मैं क्या कहने जा रहा था, यहाँ जो ब्रैकेट में x+2 होल स्क्वायर है ना, समझो पहले, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है ना, इसीलिए बार 1 कोई नहीं Yes, आया। sir. हाँ, अगले सम में वो 2x का स्क्वायर था, तो इसीलिए बाहर 1/2 लिखना पड़ा। अगर यहाँ भी 3x+2 होल स्क्वायर होता, शायद मान लो कि 3x+2 का स्क्वायर है, तो पहला काम क्या करना पड़ता, वो 3x में x का One जो by three. कोएफिशिएंट है वो 1/3 बाहर निकलना 3 पड़ता। 1/3 बाहर हाँ, निकालना। फिर करली ब्रैकेट में अपनी फॉर्मूला यूज करते। अब समझ में आया बराबर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वो कभी कभी वैसा भी आने वाला है, तो इसीलिए वो भी तैयारियां रखो। चलो अभी जाने दो, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 वाला जो आपने निकाला था, 102 पेज वाला, 102 पेज पे जाना है, बराबर। हाँ सर, देखो, निकाल हाँ, दिया। हाँ, अभी इसमें हाँ आगे बढ़े तो वो आप अपने आप दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर टाइप है। देखो बराबर है कि नहीं, चेक कर लो। पहले तो हम x² + 4x यस के सर, लिए ओके। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो किसका बनाएंगे? x+2 का होल एक्स प्लस स्क्वायर टू। लिखेंगे तो x² + 4x आएगा, बराबर के नहीं? और यस हाँ सर। सर। इसके Yes, बाद sir. इसके बाद 4 आने वाला है, +4 होगा, -4। और उधर 1 अपने को 1 चाहिए तो -3 कर देंगे। करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये भी हुआ √x² - a² जैसा फॉर्म हुआ, यस सर। √x² - a² जैसा फॉर्म हुआ। मतलब x+2 होल स्क्वायर -3, वो जो 3 है वो ही a² है, यस वो सर। भी a² है। तो इसीलिए क्या करेंगे, सिर्फ माइनस चेंज करना है वो फॉर्मूला में, वो तो आपको पता है, चेक कर लो अपने हिसाब से। यस सर, ओके। हाँ, जरा चेक कर लो, हाँ बराबर ध्यान से। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, हाँ? ओके सर। हो गया बराबर? यस सर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर ये 3 No. हाँ, बोल बोल। जो 3 है ना, वो a² बाय 2 का बता दो ना। है? सर पर वहाँ पे √3 आएगा ना? नहीं आएगा, यही तो आपकी कमजोरी है, समझते नहीं बराबर। फॉर्मूला बराबर ध्यान में रखो, a² a² बाई 2, और वही तो a² 3 है, a/2 थोड़ा है कि मैं √3 लिखूं भाई। हाँ सर, बराबर है। दिमाग दड़ाओ, दिमाग, दिमाग की बात है भाई। थोड़ी बादाम पिस्ता खाया करो यार। हाँ, सुबह सुबह में मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, थोड़ा दूध में जरा, हाँ, मिला के। हाँ सर। हाँ, खाना ही चाहिए भाई, यस। तभी आपकी बुद्धि तेज होगी। चलो आगे बढ़ाओ, नंबर 5 ला दे। हाँ सर। हाँ बस, देखो इसमें इंटीग्रेशन √1 - 4x - x² dx है। देखो मैं वही वही टाइप का सम पहले आते थे, वो सिर्फ 1 में आते थे, यहाँ यस। सिर्फ रूट में, तो कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। यहाँ भी अंदर रूट है, वहां भी अंदर रूट था, वो डिनोमिनेटर में था, यहाँ अपर में है, न्यूमरेटर में है। अच्छा, लेकिन जो नोट करने वाली पॉइंट था वो ये कि यहाँ -x² है,
तो जब भी माइनस एक्स स्क्वायर आता था उस टाइम पे भी, तो हम सेकंड टर्म को स्क्वायर वाला परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे और बाहर माइनस साइन रख के उसको सेट कर देते थे, याद आया? यस सर। तो वैसा ही यहां करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x को सेट करना है, तो मैंने किस तरह सेट किया वो देखो। पहले बीच में माइनस साइन और लास्ट वाला टर्म मैंने x+2 होल स्क्वायर कर दिया। आप देखोगे तो ध्यान में आ ही जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपांशन एक्स स्क्वायर होगा तो माइनस बाहर है तो माइनस एक्स स्क्वायर अपने आप आ गया। मिडल टर्म में 4x है, वो माइनस है, साइन बाहर तो -4x, तो वो तो सेट हो गया। इसके बाद वाला लास्ट कांस्टेंट टर्म जो आता है 2 स्क्वायर, वो 4 हुआ, वो -4 हुआ, और हमको चाहिए 1, तो आगे 5 ही लिखना पड़ेगा। ऐसा समझना है आपको। बोलो, कोई यस। क्लिप्स नहीं समझ में आई है नो बात तो बताओ। नो डाउट सर। मतलब क्या, अब वो फॉर्म हो गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला। कौन सा वाला? √a² ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि जो लास्ट थर्ड वाला फॉर्म हमने बताया था आज, यस वैसा सर। हुआ। फिर देखो उसकी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ 1 ही है, यस सर। बराबर, तो बाहर कुछ लिखने हाँ का सर। ही नहीं, बाहर कुछ नहीं है। लिखने का नहीं है। बट मगज में ऐसा रखो कि वहां x की जगह x+2 है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो x की जगह पे x+2 लिखना मत भूलना। तो अभी चलते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx की फॉर्मूला थोड़ा रिमाइंड कर लो। x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस +a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला है आपके पास। तो यहाँ क्या होगा, x/2 का मतलब x+2/2, प्लस बाय टू। √a² माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब वो 1 -4x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस हुआ a²/2, a² 5 है, रिमेंबर यहाँ √5 मत यस सर। लिखना, 5/2 साइन इनवर्स x/a, देखो यहाँ x/a, तो x+2/a की जगह रूट बाय। √2, ऐसा। अब समझ में आया बराबर? यस सर। ओके, अब जाने दो आगे, नंबर 6 वाला सम लाइए। बस बस बस, देखो √x² प्लस 4x माइनस 5 dx है। यहाँ पॉजिटिव x² है तो पहले ही सेट कर लो प्लस वाला। मैंने इसमें +4 लिखा और बाद में -9 किया, क्योंकि वो x+2 का होल स्क्वायर होगा, तो x² + 4x तो आने वाला है, +4 हुआ। हमको चाहिए -5, तो बाद में -9 ही आएगा ना। यस सर। अब फॉर्मूला वो कौन सी वाली हुई, √x² माइनस माइनस ए स्क्वायर। तो उसी मुताबिक आंसर लिखोगे। तो x/2 का मतलब x+2/2, √x² माइनस a² का मतलब अपर ओरिजिनल फॉर्म डायरेक्ट, क्योंकि वो लिखेंगे बाद में वो करेंगे, ऐसा नहीं करने का, वो ही आने वाली है, बराबर के नहीं? यस सर। तो उसको लिख देने का। फिर -a²/2 यानी -9/2, फिर log mod x प्लस x का मतलब x+2 प्लस एक्स √x² स्क्वायर। माइनस a², यानी कि √x² प्लस 4x माइनस 5 प्लस c। हो गया यस। 6 वाला भी। यस अब सर। 7 वाला, हाँ वो बच्चे ने गिना था, वो रॉन्ग किया था, मैंने कैंसल करवा दिया था और बाद में गिन के दिया है। तो जरा नीचे है, इसके नीचे जाने दे, खिसका जरा, हाँ ये वाला बराबर है। देखो इसमें इंटीग्रेशन √1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव एक्स स्क्वायर को देख के समझ में आना ही चाहिए कि सेकंड टर्म में ही हमको परफेक्ट स्क्वायर करना है और यस बाहर सर। माइनस साइन ही रखना पड़ेगा। तो ये एक ट्रिक मगज में ले लो, चाहे डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में हो। तो माइनस करके मैंने क्या किया, देखो अब x लिखा तो x² आएगा, फिर मेरे को 3x सेट करना है, प्लस 3x लाना है, बाहर तो माइनस है तो अंदर भी माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x -2 हुआ। फिर हमको चाहिए सिर्फ 3x,
अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिडल टर्म में 2x करके आता है ना, तो Yes, sir. 2x इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, वो सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा ही सोचोगे तो मिल जाएगा। 2x Yes. का 2 कट होना ही चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 2 रखना ही पड़ेगा, और 3 लाना है तो ऊपर 3 रखना पड़ेगा। तो क्या बात है, देखो कितना आराम से हो गया। माइनस इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3/2 होल स्क्वायर कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ट्वाइस करोगे तो 3x भी आ जाएगा, है ना बराबर। Yes. अब देखो अब क्या बात हुई कि कांस्टेंट टर्म डिफरेंट आ गया। कौन सा आया कांस्टेंट टर्म, तो मैं सोचू वो 3/2 का स्क्वायर 9/4 आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस 9/4 होगा। उसने दिया है 1, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे कि माइनस 9/4 को निकालना पड़ेगा, तो उसी लिए प्लस 9/4 ज्वाइंट कर दिया 1 के साथ, देख लो। Yes, sir. अब क्या होगा, 1 प्लस 9/4 का सम कर लो, तो हो गया 13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। देखो अब फॉर्मूला बन गई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी। Yes, sir. The हाँ, formula. अभी फॉर्मूला को अप्लाई करना है। देखो x/2 x की जगह x माइनस 3/2 है, तो वो x माइनस 3/2 लिखेंगे, फिर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ो, तो वो 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का मतलब 13/4/2, फिर साइन इनवर्स x बाई एक्स की जगह x माइनस 3/2 एन अपॉन ए, तो 13/4 का रूट निकाल के लिखना है यहाँ, रूट 13/2। अब सिंप्लीफाई करके लिखे तो देखो वहां 2 एलसीएम है, पहली वाली टर्म में देखो, तो 2x माइनस 3/4 हो जाएगा। Yes, sir. हाँ अंडर रूट में जो है वो सही का सही वैसा ही लिखने का है, प्लस 13/8 होगा, देखते जाओ। और लास्ट वाली टर्म साइन इनवर्स जो है, उसमें भी 2 ऊपर अपर लोअर में एलसीएम निकलेगा, तो ऊपर 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर में रूट 13। तो ये उसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू क्लियर। Yes, sir. तो अब हम चले 104 पेज पे, वो आया नंबर 8, एग्जाम्पल 8 आ रहा है। हाँ बस देखो इसमें सिर्फ रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, ये बच्चे ने गिना है ना, तो इंटीग्रेशन साइन पढ़ना भी भूल जाता है, dx भी नहीं लिखता है। आप लोग गलतियां मत करना, ऐसी ऐसी गलतियां करके आते हैं बच्चे। देखो कहीं पे भी इंटीग्रेशन साइन नहीं की और Yes, इंटीग्रेशन sir. का आंसर भी आ गया। समझे। Yes, sir. ऐसे समझ गया. हाँ, तो ऐसा एग्जाम में मत करना। ये Yes. आपको समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे बच्चे लोग मिस्टेक करते रहते हैं, हम बोलते हैं ना तभी नहीं सुनते। देखो ये जो लिखा है वो मैंने नहीं लिखा, वो तो आपको हैंड राइटिंग से भी पता चल जाता है, जो Yes, वो sir. बच्चे ने गिना है वही लिखा है। तो कैसा लिखा देखो ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इंटीग्रेशन साइन नहीं पड़ा है, तो पढ़ना चाहिए। अच्छा अभी आगे बढ़ो, हम लोग मान लेते कि इंटीग्रेशन dx है, अगर आप नोट में लिखो तो जरा एग्जैक्ट केयर लेके लिखना, बराबर है। चलो हाँ, sir. इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx है, तो क्या करें, अंडर रूट में पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है ना, उसको Yes, हम sir. x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। वो Yes, एक्स sir. पर पॉजिटिव है तो पहली टर्म ही आने वाली है, और वो भी x प्लस 3/2 होल स्क्वायर आने वाली है, आगे आगे समय यही तो हुआ था। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ, मिडल टर्म 3x हुआ, फिर 9/4 आ गया, तो उसको वहां कोई नहीं है टर्म, तो मतलब 9/4 पूरे Minus. का पूरा टर्म कट करना पड़ेगा, तो हो गया ना Yes, sir. बराबर। अभी उसकी फॉर्मूला कौन सी वाली आई, रूट एक्स स्क्वायर माइनस Minus ए a square. स्क्वायर, बस तो उसको यूज करते हैं। तो Okay, x sir. बाई 2 का मतलब क्या हुआ, x प्लस 3/2/2, 2/2. फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे तो अपना ओरिजिनल ही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा, फिर Yes, sir. माइनस ए स्क्वायर बाई 2, मतलब 9/4 का By बाई 8. 2 है ना, 9/8 लिख दिया। फिर Yes, लॉग sir. वाला आएगा ये फॉर्म, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वैसा आएगा। तो x की जगह x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो है ही रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। बोलो बराबर है।
इसमें यस सर। इसमें फिर बराबर। सिंप्लीफाई किया, हाँ फिर सिंप्लीफाई किया, ऊपर वाला 2 एलसीएम आएगा, नीचे जरा खिसकाओ, देखो आंसर 2x प्लस 3/4 होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा, -9/8 है ना। फिर यस लॉग मॉड x प्लस वो सेम टू सेम लिखेंगे। अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते यहाँ भी एलसीएम लिख दिया जाए तो 2 एलसीएम निकालोगे तो 2x प्लस 3 प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x होगा एंड बाई 2 आएगा। अगर आप टेक्स्ट बुक में आंसर में देखो तो बाई 2 नहीं होगा, मतलब क्या किया है उसने, लॉग रूल यूज किया और माइनस log 2 कर दिया, और -9/8 log 2 वो कांस्टेंट में कांस्टेंट मच करके नया कांस्टेंट सीडेस भी लिख सकते हैं। जरा ऊपर लो तो उसको इसी टाइप का भी आंसर लिखा जाता है, देखो मैंने लिखा, बस यहाँ देखो, आप सोचना मत कि यहाँ से 2 कहाँ चला गया, आप सोच में तो पड़ जाओगे कि साला नीचे 2 नहीं आया, ऐसे तो 2 आना चाहिए, लेकिन क्या है, लॉग का रूल यूज किया, लॉग x/y है तो log x माइनस log y लिखते हैं कि नहीं आप लोग। यस सर। हाँ हाँ सर, तो और डिवाइड वाला माइनस डिवाइड। हाँ -log 2 हुआ, और बाहर जो -9/8 है उसके साथ मिला दो प्रोडक्ट, उसका सेपरेट टर्म करके प्रोडक्ट कर लो, तो 9/8 log 2 होगा क्या नहीं। हाँ सर। और वो 9/8 log 2 कांस्टेंट है, और वो पीछे c है वो भी कांस्टेंट है, उन दोनों को कांस्टेंट में कांस्टेंट मच कर दिया और अनदर कांस्टेंट c डैश करके लिख सकते हैं। तो इसी टाइप का एडजस्टमेंट होता रहता है। कभी कभी आपका आंसर ऊपर वाला आए और आप बुक में देखने जाओ तो वहां इस टाइप का आंसर लिखा हो तो घबराना मत, डिनोमिनेटर वाला 2 कहाँ गया ऐसा सोचना ही मत, समझ में आना चाहिए कि -log 2 वाला जो टर्म आता है वो तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करोगे तो नया कोई कांस्टेंट ही खड़ा होगा, तो इसीलिए नया कांस्टेंट लिख देता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। यस सर। चलो तो फिर 105 पेज पे आ जाओ, आज का लास्ट पेज देख लेते हैं। सम नंबर 9 आया, देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 1, जो इसमें भी इसने इंटीग्रेशन साइन नहीं पाई देखा ना। यस सर। अभी क्या होता है देखते हैं। अच्छा उसने क्या किया, अंडर रूट x/3 का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस 1, बराबर ही है, रूट एक्स यस। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्म हो गया। अब उसने जो को कैर ली है, क्या कैर ली है देखो, उसने वन लिखा, बाई थ्री। हाँ उसने क्या लिखा, 1/a का मतलब 1/1/3 यानी कि 3 हो गया, यस सर। x/3 है ना अंदर, तो x का कोएफिशिएंट 3 नहीं है 1/3 है, तो वो 1/3 डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, 1 के नीचे अगर 1/3 लिखोगे तो वो एज गुड एज 3 ही हुआ, यस सर। तो इसने 3 हाँ लिख सर। दिया, हाँ 3 लिख दिया बाहर, बराबर है, फिर करली ब्रैकेट में अपनी फॉर्मूला काम में लग जाती है। इस तरह वो देखो x/2 ऐसा लिखता है ना, x/2, तो यस x, यस। सर, तो x/3 है, 3 × 2 6। हाँ तो x/6, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, वो तो एक्स स्क्वेयर प्लस बाई 9 प्लस 1 ही है, यस सर। प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 मतलब 1/2, लॉग मॉड क्या हुआ फिर, लॉग मॉड करके x/3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर बाई 9 प्लस 1, वैसे का वैसा, तो उसने सही ही गिना है, कुछ गलत नहीं किया है, समझ में आ रहा है ना आपको। अब भी देखो मैंने दूसरी तरीके से बताया उस बच्चे को, और आप लोगों भी समझ लो, और करके मैंने स्टार्ट किया है, कैसे थे यस देखो, सर। ऐसे भी गिन सकते हैं, ये इसने किया है तो परफेक्ट। फिर देखो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर बाई 9 प्लस 1, मैंने एलसीएम निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एलसीएम, 9 निकलता है ना एलसीएम, एलसी। अरे यार एलसीएम हाँ नहीं सर, निकलता, निकलता है निकलता तो दोस्त तुम आप लोग ठहर जाते हो तो मैं घबरा जाता हूँ, तो आप लोगों को एलसीएम की आइडिया नहीं है। आती सर आता है आता है। है तो फिर आप लोग चुप हो जाते हैं तो मैं सोचने पड़ जाता हूँ कि कोई मैं गलत बोल दिया क्या
एल Nice. एलसीएम का आपको पता है 9 एलसीएम आएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9/9 होगा क्या नहीं। और जो Yes, sir. डिनोमिनेटर में 9 वाला मैंने बाहर निकाल दिया रूट में से 1/3 करके, चला Yes, बराबर sir. है। और अंडर हो गया, अंडर Yes, रूट sir. एक्स स्क्वेयर प्लस 9 का मतलब रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। अभी भी इस तरह भी कर सकते हैं कि नहीं, बोलो आप। Yes, sir, कर सकते हैं। हाँ, तो वो 1/3 मैंने बाहर लिखा तो वो रहेगा ही। करली में क्या होगा, अपनी फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे। x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस X square 3 plus स्क्वेयर 3 प्लस a स्क्वेयर बाई 2 1/2. मतलब 9/2 लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 3, बराबर है। अभी Yes. हम अभी हम कंबाइन करके देख ले तो क्या हुआ। X by 6 हाँ, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9 plus. बराबर Yes, प्लस sir. 3/2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9। अबे आप देखोगे तो आंसर में थोड़ा फर्क दिख रहेगा, लेकिन फर्क कुछ नहीं है अगर आप चेक करोगे तो। चलो Yes. पहली वाली टर्म को देखो, उसने जो लिखा है इसमें 3 × x/6 रूट एक्स स्क्वेयर बाई 9 प्लस 1 था, बराबर है। तो Yes, इसमें sir. 3 उड़ा उड़ा दो तो x/2 आएगा कि नहीं। Yes, sir, आएगा। अच्छा, और जो उसमें से 9 एलसीएम निकालोगे तो वो बाहर 3 आएगा, तो फिर x/6 हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir, हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9 आएगा, वही टर्म वहां पे आई है, देख लो फिर उधर बता दो सबको, ऊपर लेके बता दो। x/6 रूट एक्स स्क्वेयर मैं जो लाया हूँ वो बताओ, ये तो देख लिया आपने। हाँ, वो x/6 रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9 वही हुआ ने। Yes, फिर sir. बाहर वाला 3 अंदर लोगे तो 3/2 होगा। फिर लॉग वाला में एलसीएम निकाल के दे दिया, देखो ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाला जो ये जो है ना आंसर किस तरह से आएगा देखो यहाँ पे। हाँ, अभी यहाँ 9 वाला यहाँ भी 3 एलसीएम होगा, 3 लॉग 3 वो मैंने पहले बताया, वो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 3 आएगा, वो कांस्टेंट में कांस्टेंट मच हो जाता है, इसीलिए वहां लॉग डिनोमिनेटर में 3 नहीं दिख रहा है। ऊपर लो, ऊपर लो, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है आपको 3, मैंने जो पहले समझाया था वही है। तो ये दोनों में आपको आंसर में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है लेकिन सेम ही है, Yes, समझे। sir. अच्छा, अभी आया हाँ नंबर सर। 10। नंबर 10 बहुत सिंपल था इसलिए उसने नहीं गिना था, मैंने कल लिख दिया आपके लिए। वो तो फॉर्मूला ही है, देखो इंटीग्रेशन Yes, अंडर sir, रूट वन same माइनस formula. एक्स डी एक्स ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बोलो के एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बोलो, वो तो एक ही बात हुई। Yes, sir. तो उस फॉर्मूला के मुताबिक x/2 रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 का मतलब 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, आप बुक में से देख लेना, वो करेक्ट ऑप्शन ए है। Okay, sir. 4 ऑप्शन नहीं लिखा है। और इसके बाद वाला देखो 11th वाला सम, 11th। एक्सरसाइज खत्म सर। हाँ वही तो लास्ट वाला, मैंने बोला नहीं कि आज खत्म होने वाला है। अभी जो सम का क्वेश्चन अंडर रूट x-4 होल स्क्वायर माइनस 9 दिया गया है, देखो फिर अब ध्यान से, x-4 होल स्क्वायर माइनस 9 मतलब रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप वाला फॉर्म। तो x-4/2 फॉर्मूला लगाएगा। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 होगा, जो ओपन करोगे तो वो, एक्सपांड करेंगे। हाँ वो ही दिया होगा ऊपर, वो उसने नहीं लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया, सेट कर दिया है। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 का ही इंटीग्रेशन पूछा होगा, तो वो उसने x-4 होल स्क्वायर करके वो 16 आया, और उधर प्लस 7 चाहिए तो -9 कट कर दिया, दूसरा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको। यस सर। फिर हाँ माइनस ए, सर। हाँ -a² 2 का मतलब 9/2 एंड 9/2 लॉग मॉड x प्लस जो लॉग आता है मॉड वही है, तो वही लिख दिया। देखो x की यस जगह x-4, ये याद रखना पड़ेगा। -4 तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी आता है। ठीक है। हाँ, तो अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुनो।
ये एक्सरसाइज अपनी 7.7 हुई, 7.7। 7 और इसके बाद जो आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो दो टाइप का इंटीग्रेशन आता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है जो अभी अभी हमने कंप्लीट कर दिया, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है। पहली वाली बुक यस वो जी थी ने, तो उसमें 3 चैप्टर बनाए थे। कितना चैप्टर बनाए थे? 3। हाँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला 2 चैप्टर था। 2 चैप्टर कैसा कैसा वो भी मैं बताऊं। पहला वाला चैप्टर में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का सम ही आता था। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो पहले पहले हमने देखा ने, तो यस वो सर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला था। और इसके बाद दूसरा चैप्टर बनता था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। जहां से हमने शुरू किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, वो सेकंड चैप्टर कहला यस जाता था। और तीसरा चैप्टर आता था डेफिनेट इंटीग्रेशन करके। तो ये 3 चैप्टर यहाँ मिला दिया है एक ही चैप्टर में, इसीलिए चैप्टर लेंथी लग रहा होगा। वो 7.11 तक एक्सरसाइज है, एंड बाद में मिसलिनियस एक्सरसाइज तो है ही, समझे। इतने यस सम सर इलस्ट्रेशन सम अंदर दिए गए हैं। हम लोग तो सिर्फ एक्सरसाइज का ही सम करते हैं। मिसलिनियस वाले इसमें एक्सरसाइज में भी इलस्ट्रेशन सम भी बहुत दिए गए हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए। इसमें भी कोई कठिनाइयाँ हो, तकलीफ हो, तो मुझको पूछना चाहिए, तभी मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा। बराबर है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ हम इंटीग्रेशन टॉपिक यहाँ स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि जे डबल ई वर्क करना है। जैसे आपने समझ रखा होगा या तो चालू कर दिया होगा दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे आपको पैरेलल स्टडी जे डबल ई का भी करना है इस साल भी। पिछले साल तो हम लोग करवाए थे, आपको पता ही है, बहुत से सम किए थे, सीक्वेंस एंड सीरीज में किया था। मेरे को मैथ यस में सर पता है। फंक्शंस हाँ, फंक्शन, यस बाइनोमियल थ्योरम पे सब बहुत बहुत कर किए थे। इसी साल यस भी, सर इसी साल भी ये जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किए हैं उसका ही सम करना पड़ेगा। पिछले ओके साल सर भी हमने सेट एंड फंक्शन पे ऊपर थोड़ा सम किया था जे डबल ई में, रिलेशन एंड फंक्शन में। इस साल भी यस रिलेशन और फंक्शन का ही टॉपिक है। इसमें थोड़ा ज्यादा उसी टाइप का सम करेंगे जो बाकी बचे हैं वो। उसी उस टाइम ओके आपको ये नॉलेज नहीं था जो इस साल है, तो इसीलिए वो टाइप का सम हम लोगों ने छोड़ दिया था रिलेशन एंड फंक्शन में, तो वो बताना पड़ेगा। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि अभी यहाँ हम रुक जाएंगे। रुक जाएंगे का मतलब अभी आज का तो टाइम बाकी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम शुरू करेंगे तो जे डबल ई का वर्क करेंगे। और जे डबल ई में भी रिलेशन एंड फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा जैसा अपना चैप्टर आया है वैसे वैसे चैप्टर करेंगे। पहले रिलेशन एंड फंक्शन, इसके बाद मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट का कंबाइन कर देते हैं, ये तो हर एक जगह पे कंबाइन ही ओके सर होता है। तो मैं क्या बोलते हैं कि दोनों में कॉमन एक दूसरे में घुस जाता है। डिटर्मिनेंट में भी सम देखा है ना आपने, तो मैट्राइसिस का वर्क आता ही है। तो ये यस ऐसा सर इसी टाइप का हम करेंगे। पहले रिलेशन फंक्शन का टॉपिक बताएंगे, बराबर है। ओके और सर इसके बाद हम जाएंगे कहाँ? डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस मैट्रिक में। वो कंप्लीट होने के बाद हम इंटीग्रेशन में आएंगे। इसके पहले ओके सर इंटीग्रेशन में नहीं आएंगे, ये चैप्टर टॉपिक पूरा करेंगे, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन से शुरू करेंगे। लेकिन इन बिटवीन वो जे डबल ई का वर्क बताना है, तो वो हम लोग बता देंगे। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने जा रहा हूँ? आयुषी, पंकज, सबको? यस सर आयुषी क्लियर तो गायब रहती है, क्या है? राय, राय भी गायब हो गया, नहीं है ने? आज राज है, राज तो दिखता है लेकिन वो म्यूट पे कायम बैठता है। उसने तो माइक्रोफोन कंप्लीट नहीं करा है। राय नहीं है ने, पंकज? नहीं सर सर, राइट एक का प्रॉब्लम आ है रहा तो है 2 मिनट में सही जाएगी। हाँ, आता जाता रहते हैं। तू भी यही करती है भाई आयुषी। नहीं मैंने सर, હમણાં ફોન આવતો હતો ને એટલે। हाँ, वही तो बात हो रही है ना। मैंने कब का देखा। देखो तो भाई कायम बैठा रहो, सुनता रहो सब कुछ,
आपके लाभ की बात है। हाँ, मैं क्या बोला था तो वो समझ में आ गया ना आप लोगों को सब? नेक्स्ट टाइम मतलब यस सर, समझ कि में आ जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं चालू करूंगा क्या, वो रिलेशन जे डबल फंक्शन के फंक्शन। ऊपर। हाँ, जे डबल ई का सम, जे डबल ई वाला सम हम स्टार्ट ओके सर। करेंगे। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस लेंगे और फिर हम शुरू करेंगे अपना ये डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला टॉपिक। मीनवाइल आप डेफिनेट ओके इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो जो डिस्कशन हमने किया है वो नोटबुक्स बनाते जाओ। आज भी मैं थोड़ा सम दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, तो वो घर पे कंप्लीट करना, बराबर है? चलो, अभी जो यस सर। पिछले टाइम मैंने सम दिया था, हम्म। मतलब कि 25 को जो मैंने सम दिया था आप लोगों का, इसमें, यस सर। हाँ, मैं आप लोगों ने भेजा तो है सॉल्यूशन मेरे ख्याल से। मैंने मेरे ख्याल से पंकज का पहला आया था, मैंने देखा था तो बहुत गलत कर रहा है, वो भी मैंने देख लिया। इंटीग्रेशन के जगह डेरिवेटिव करता है ऐसा दिखाई रहा था। तो आपको प्रॉब्लम हो तो जरा बताओ, तो मैं एक सम करके बताऊं पहले, बाद में आपका जो डिफिकल्ट हो इसमें वो पूछ लो। क्योंकि 12 सम है, टाइम जितना है इसमें ही करना है, तो आप कोई तकलीफ हो तो बोल दो कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। पंकज, आप एक दफे सिर्फ पहले से कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें ओके आप, हाँ, इंटीग्रेशन के जगह डेरिवेटिव में सोच में पड़ जाता है। बोलो सर, राय। डायरेक्ट किए हुए हैं सर मेरे। है, हाँ हाँ, वो था ना, मैंने देखा ना, आपको बताऊं, सर आपके मैं देख ही सामने रहा पेश हूँ। कर लेता हूं, मैंने देखा है तो भी बोलता हूं, मैं गलत नहीं बोलूंगा। ओके सर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो पंकज मैं निकाल देता हूँ एक मिनट आपका। मैं स्क्रीन पे लाता हूँ सर। हाँ, स्क्रीन पे ला देने बहुत अच्छा रहेगा, आपकी डिफिकल्टी आपके सामने आ जाएगी। मैंने ऑब्जर्व किया, हाँ, हम बैठे बैठे देखा कि क्या आया है, देखो, तो ऐसा मैंने महसूस किया कि भाई ये गलत जा रहा है। अभी उसी टाइम पे तो लिख के गिनने का मतलब कोई रहता नहीं है। हाँ, चलो आ गया, पहला वाला सम आया। चलो मैं बताऊं, आप देखो, देखते हैं ना सब, सबको दिखाई यस देता सर। है कि नहीं? बोलेगा ही नहीं कोई। हेलो सर। पंकज, हाँ तो बोलना ही यार हाँ तुरंत। सर। हाँ, तो एक्स दिख इंटू, रहा है। हाँ देख, एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स लिखा है, बराबर है? बाई पार्ट से आपने स्टार्ट किया, इनवर्स पहला आएगा वो भी बराबर है। कॉट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स लिखा, बराबर है? फिर माइनस इंटीग्रेशन यस सर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स है, एंड होल प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कर दिया, बराबर है? सब कुछ बराबर है, स्टेटमेंट ओके है। फिर आपने क्या किया, वो सेकंड स्टेप में देखो, आपने तो इतना सिंपल बना दिया कि जाने कि ऐसा कैसे आ गया, कॉट इनवर्स एक्स और बाद में इंटीग्रेशन एक्स का मतलब 1 कर दिया, डेरिवेटिव किया आपने इंटीग्रेशन की जगह, ओ समझे? यस सर। तो फिर क्या लिखना हाँ सर। चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखना एक्स स्क्वायर चाहिए। बाई 2। हाँ, वही डिफिकल्ट यस सर, वो उधर में है। डेरिवेटिव डेरिवेटिव ज्यादा मांग लेते तो हैं। फिर अभी सेकंड सम में देखो, सेकंड सम हाँ ऊपर सर, जाने, ये लगभग ये हर सब यही में ये यही प्रॉब्लम हो तकलीफ है, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं क्या देखे इसमें, ओके ओरिजिनल सर, मैं इसको। बात ही आप मगज में नहीं रखते तो भाई कैसे करेंगे, फिर देखने की कोई जरूरत नहीं लगी मेरे को, क्योंकि वैसे ही मिस्टेक हर एक सब में शायद होगी। तो हाँ सर। इसीलिए कह रहा हूं कि भाई आपको केयर तो लेनी पड़ेगी। ओके सर। हाँ, जो ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि आपको समझ में आए कि नहीं, साहब बराबर बोल रहा है। चलो, अभी तीसरा सम में क्या किया है देखो, वो भी कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें आपने जो लिया, सपोजिशन किया, सब कुछ ठीक है, देखो, कॉस इनवर्स एक्स बराबर टी यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब एक्स कॉस टी बराबर है
फिर डेरिवेटिव किया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब आप क्या करते हैं वो मैं बताऊं। जब dx लिखने जाओगे तो आप -√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी लिख देते हैं, बराबर है। तो अभी कोई ऐसा थोड़ा होता है भाई कि जब हम सपोज करें, मेरी बात सुन, अभी आगे मत बढ़ाकर, कॉस इनवर्स एक्स की जगह टी लिखो तो पूरे का पूरा टर्म फंक्शन टी में ही आना चाहिए। आप तो टी और एक्स मिक्स कर देते हैं और बाद में एक्स की जगह कॉस टी लिख देते हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? ऐसा तो होता ही नहीं। तो पहले बाहर कैलकुलेशन करो कि जो dt वाला टर्म है ना भाई, सुनो पंकज, तो t वाला जो टर्म यस है सर। वहां -√1 माइनस यहीं पे cos स्क्वायर टी लिखो और उसका आंसर ला दो कि ये माइनस साइन टी डी टी है। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करने जाओ तो वहां डायरेक्ट वो माइनस साइन टी डी टी लिखा जाना चाहिए। मतलब t वाला लिखो तो t वाला ही टर्म होना चाहिए, टी एक्स का मिक्सिंग मत करो। ओके सर। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। तो नहीं वो क्या हुआ वो था सर, मतलब है। मैं टी वहाँ कर रहा था लेकिन अगली लाइन में मैंने हाँ, वो गलती तो से एक्स किया, हो गया वो था। किया मैंने देखा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, वो रॉन्ग दे ओके देगा यहाँ पे। ठीक। है ना, समझ में आया ना? बराबर जो करना है, जो सही है वही सही मैं बोलूंगा। ओके सर। कहाँ पे तकलीफ होती है वो आपको सोचना पड़ेगा, बस बड़ी वही बात है। देखो इसके बाद वाला में तो कोई तकलीफ नहीं है, आपने टी स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, सब कुछ आ गया, जाने दे ऊपर। फिर वही गलतियां शायद होगी जब इंटीग्रेशन करोगे, जे जाने देना ऊपर, थोड़ा थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। सर पता नहीं ऊपर जा नहीं रहा है, कर दिया हाँ, लेकिन। अच्छा अच्छा। तो ये ऐसा ही सोचना पड़ेगा। देखो अभी इसमें भी क्या किया है, तो इसमें सही किया। देखो साइन इनवर्स एक्स टी लिखा, डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वहां तो सीधा डी टी है ना, इसीलिए डी टी आ गया। इसमें नहीं तकलीफ पड़ी क्योंकि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के बजाय डी टी लिख दिया, है ना। एक्स की जगह यस साइन सर। टी, साइन इनवर्स की जगह टी, बस। तो बाद में तो क्या करने का है, टी एज इट इज। साइन टी का क्या लिखा आपने? हाँ, कॉस टी बराबर माइनस कॉस टी। माइनस माइनस बाहर निकाला है, बराबर है, माइनस है। डेरिवेटिव ऑफ टी 1 लिख दिया, फिर माइनस कॉस टी लिख दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया और कॉस टी, बस बराबर है। प्लस सी लिखो बाद में, लास्ट में प्लस सी ऐड होना चाहिए। ओके सर, ये भी आदत डालेंगे। हाँ, फिर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स है। तो इसमें क्या लिखा, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वेयर एक्स डी एक्स रह गया, देखो डी एक्स लिखना चाहिए बगल में। फिर ओके सर। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स के साथ भी डीएक्स होना चाहिए और होल ब्रैकेट में भी डीएक्स है। वो तो बाहर का डीएक्स लिखा है, अंदर वाला बाकी रह गया। समझ में आया ना? जो मैं बोलते जाऊं वो सुनो और उसी मुताबिक सुधार करने का। चलो ओके सर। एक्स, हाँ एक्स इंटू वो इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का मतलब माइनस कॉट एक्स हुआ, माइनस बराबर है वो डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो गया, वो माइनस कॉट एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, वेरी गुड। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स, बस बिल्कुल सही है। तो जो यहाँ अंडर डी एक्स नहीं लिखा है वो समझना। ओके, 6 वाला सम में क्या किया, एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, वेरी गुड। एक्स एज इट इज किया और सेक एक्स टेन एक्स को साथ में ले लिया, यहाँ भी डी एक्स आपसे रह गया है, दिख रहा है ना यस सर। आपको? गलतियां पता चल रहा है लगी ना नहीं मैं सर। क्या? हाँ, बस 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 वही सुधारने का है, दूसरा कुछ नहीं। हाँ सर। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स है, सही बात है। तो इसीलिए तो आप लोगों ने सेक एक्स टेन एक्स साथ में लिया, ये आइडिया आना चाहिए आपको। आइडिया आ गई है मतलब कि आप राइट वे पे है। सेक एक्स टेन एक्स को आपका बहुत सिलेक्शन कर दिया कि इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स है, आई मीन सेक एक्स है, तो इसीलिए साथ में ले लिया। माइनस डेरिवेटिव एक्स का वन, वो बराबर सेक एक्स, वेरी गुड। एक्स सेक एक्स जाने दो ऊपर, फिर इंटीग्रेशन सेक एक्स बराबर है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़े, इसके बाद वाला कौन सा है, सेवंथ वाला। हाँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 एंड इंटू लॉग एक्स डी एक्स। इसमें लॉग एक्स कम फर्स्ट, वेरी गुड। इसके बाद इंटीग्रेशन वो पोलिनोमियल का किया, बाद में माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करके लिख दिया 1/x, वो इंटीग्रेशन करके लिखा x³ 3 3x² 2 प्लस एक्स, वेरी नाइस। चलो पहले टर्म तो आ गया है।
वो तो बराबर है। उस दूसरे वाले में देखे तो वो x डायरेक्ट में से कट कर दिया, वो भी सही है। फिर इंटीग्रेशन कर दिया x³ 3 and 3 9, वेरी गुड। 3/2 एंड x² 2 का मतलब 4, और बाहर वाली माइनस साइन भी ले ली। क्या हम लास्ट में नहीं लिया माइनस साइन? लास्ट में प्लस लिख दिया आपने, माइनस x लिखना चाहिए, बराबर है। हाँ और प्लस सी तो हर एक में भूल जाते हैं आप, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हर एक में आएगा। ओके सर। अच्छा आगे बढ़ो, 8 वाला नंबर देखो। तो इसमें e रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस कॉट एक्स, तो क्या किया इसमें? डायरेक्ट सर ई रेस टू एक्स को माइनस कॉट एक्स। हाँ उसका डेरिवेटिव बना दिया, लेकिन लेकिन हाँ माइनस कॉट एक्स लिखा है ना अंदर, ई हाँ रेस टू सर, एक्स ब्रैकेट में क्या लिखा है? माइनस। माइनस कॉट एक्स, बस बराबर है। वहां प्लस है तो वो माइनस, नहीं तो माइनस पहले साइन बाहर निकाल देने का, समझे? ओके पहले सर। माइनस बाहर निकाल सकते हैं आप, एंड कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये सही है, लेकिन प्लस सी तो हर एक सम में आपका रह जाता है। यस सर, तो नेक्स्ट टाइम से इसको। हाँ हर एक में लिखना ही पड़ता है। चलो 9th वाला देखें, ई रेस टू एक्स कॉसेक एक्स इंटू 1 माइनस कॉट एक्स, हाँ उसको ओपन कर दिया। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव ही है माइनस कॉसेक कॉट, वेरी गुड। तो इसमें भी प्लस सी तो गायब रहे। चलो नंबर 10 में देखे, नंबर 10 में ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में 2 माइनस साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x है। तो इसमें भी आपने ठीक तरीके से किया, वो 2 और 2 कट कर दिया, डिनोमिनेटर वाला भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा ना, 2 कट यस सर। करके। तो 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वेयर एक्स, या सेपरेट डिवीजन किया तो कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस कॉट एक्स आता है। तो इसका मतलब ब्रैकेट कंप्लीट करो, cos x स्क्वायर माइनस कॉट एक्स, और बाहर dx तो लिखता ही नहीं है, कोई में भी dx नहीं है, देखो ये क्वेश्चन में सब था। कुछ कार्य, हाँ ये पहले में लिखा है तो उसका क्या मतलब, हर एक स्टेप पे आएगा dx। dx का ओके मतलब सर। क्या है कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट x, टू एक्स। वो इंडिकेट करता है। हाँ ओके सर। चलो तो फिर आगे बढ़ो, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस कॉट एक्स, वेरी गुड। इसमें भी ई रेस टू एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी आ गया, करेक्ट करेक्ट। लेकिन वो डायरेक्ट लिख देता है, हैं आप एक मिनट जरा नीचे आओ। फिर किसका, हाँ देखो अभी यहाँ आपको पता चल गया, लेकिन सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपने ये फॉर्मूला यूज की? ओके मैंने सर, कोई हाँ मेंशन। एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स सपोज करो, और उसको बताओ कि वो एफ डेस एक्स है, तभी ओके वो पता चलेगा। हाँ चलो जाने दो आगे, 11th वाला देख लेते हैं। वो सेम ही है, राइट। इसमें साइन एक्स बाई 2 वाला आता है, बराबर, जाने दीजिएगा। आगे क्या होता है? हाफ, हाँ हाफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2, वेरी गुड, ये भी सही हो गया। प्लस सी लिखना बाकी रह जाता है। और लास्ट वाले में सेट करना है, x माइनस 1 का पावर 4 है तो ऊपर क्या किया, x माइनस 1 एंड माइनस 3, गुड। तो वो हो गया पहला वाला फंक्शन, दूसरा वाला उसका डेरिवेटिव है, ऐसा बताना। हाँ जब लिखो तो ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट क्या लिखना, एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज 1/x-1 होल क्यूब। इसी टाइप का समझ ने बहुत से किया है, और उसमें देख लो मैं कैसे कैसे लिखता हूँ, है यस ना? सर। ओके, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। નેક્સ્ટ ओके। ટાઈમ વી પ્રોસીડ, અને એની અંદર આપણે શું શીખીશું, મેં વાત કરી તમને જે ડબલ ઈ વાળું, ओके सर, रिलेशन एंड फ्रॉम। દેવેશનો, હા એટલે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે એ જોઈશું, જે ડબલ ઈ માં રિલેશન એન્ડ ફંક્શન આયુસી આપણે હા સર. રાય, હા બધા સાંભળો જ ને બરાબર? હા સર. આજના સમ હું હમણાં આપીશ થોડાક, એ બી ગણજો, એ બી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ચેક કરી લઈશું, સમજ્યા ને? આવી રીતે જ બધા ગણતા રહેવા જ પડે। ઓકે ચાલો, बाय सर। થેન્ક યુ, બાય સર. થેન્ક યુ। હા હા મારું લાઈટ બિલ તો પેલા જ ભરવાનું હોય ને, આપણે થોડું ભરવાનું હોય। હા. હવે આપણે નથી ભરવું।